Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Now, today we will start with a new chapter, and today date is 30 November 2020. And now, student, we will start with the new chapter. Name of your chapter is Things We Make. Things we make. So, student, before starting this chapter, I want to give you few homework from chapter number 18. Okay, so in the previous video, I forget to give you this homework. See, National Festival of India, I have discussed. Harvest Festival of India, I have discussed. And Religious Festival of India, in all my videos I have covered or I have explained this topic to you. So you have a very small homework for you, student, that you paste the picture of these. Okay, paste the picture of national festivals, national festival, harvest festival, and religious. Okay, student. Before starting the new chapter, a small homework I have given to you. Please complete it in your classwork copy, because many of only few students have given your copy for the correction, and maximum student have not drawn the diagrams in the EVS copy. So student, make this thing or note down that next time when you send your copies, please draw the diagrams also which are given in the chapter. So in 18 chapter, you paste the picture of, you can paste the picture or you can also draw it. It depends upon you. Paste the picture of national festival, harvest festival or religious festival in your classwork copy. So complete this work and then give your copy for correction. So student, things we make. Okay. So student, in this chapter, you will, what do you will understand in this chapter? You will understand different types of a art and craft. ठीक है, जो आर्ट और क्राफ्ट है in our country. Our country is famous for different types of art and craft. हमारी कंट्री क्या है,
डिफरेंट आर्ट और क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है. So this thing we will study in this chapter. And another is importance of these things in our life, or what is the importance of these things in our life, that also we will discuss in this chapter. Now see, let's start from the beginning. Early humans, early humans who lived thousands of years, thousands of years ago, hunted animals. Okay, and gathered plants for food. So student, see, early humans who lived thousands of years ago hunted animals and gathered plants for food. So what is given, if you are, or if we are talking about the past history, so early human beings, if we are talking about the past time, then the human beings, they always move from one place to another in search of food. जैसे आप लोग ने एनिमल्स को देखा है ना, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, ऑल द टाइम दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ द फूड. इन द सेम मैनर अर्ली ह्यूमन बींग्स भी जब थे तो उनको कोई चीज की नॉलेज नहीं थी. लाइक एनिमल्स, द ह्यूमन बींग्स आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो भी एनिमल्स की तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते थे बेटा. किस लिए? इन सर्च ऑफ द फूड. एंड व्हाट आर द फूड द अर्ली ह्यूमन बींग्स ईट एट दैट टाइम? सो दे ईट द प्लांट्स प्रोडक्ट्स. प्लांट्स प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है. सो दे ईट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब आपको भी पता है कि बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें सीजन आता है तभी फल आते हैं, हर समय फल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा मूव करते रहना पड़ता था. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऑल द टाइम वी डोंट हैव फ्रूट्स. सो सारे फ्रूट्स के भी अलग अलग सीजन्स हैं. कुछ फ्रूट्स समर में होते हैं, कुछ विंटर्स में होते हैं, कुछ रेनी सीजन के समय होते हैं. सो इन दिस मैनर दे एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन द अर्ली मैन थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज आल्सो like a animals. The life of the early man is also like a animals. They also move from one place to another in search of the food. Okay, in search of the food. And even the early mans, to save what is the shelter for them, they use to, what is the safe shelter for the early man, that is caves. गुफाओं में रहा करते थे. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे. ठीक है. सो इवन दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स आल्सो. एंड इवन द अर्ली ह्यूमन बींग्स हंटेड, मतलब हंटेड एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल्स को मारते भी थे और उसकी फ्लैश को भी खाते थे. आ रही है बात समझ में? वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और
वो लोग क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स की चीजें भी खाते थे, इसके साथ साथ वो दूसरे एनिमल्स को भी किल करके उनके फ्लेश को खाते थे। एंड व्हाट आर द टूल्स यूज बाय द अर्ली मैन एट दैट टाइम? स्टोन्स जो होते थे, स्टोन से, जो स्टोन होते थे, जो बड़े पॉइंटेड निडल लाइक स्टोन्स होते थे, उनसे वो एनिमल्स का शिकार करते थे, उनको मारते थे। या तो फिर दे इवन विद द हेल्प ऑफ द वुड आल्सो, इवन विद द हेल्प ऑफ द वुड आल्सो दे किल द एनिमल्स। ठीक है, वुड को आगे नीडल की तरह शार्प कर लिया। अब इस शार्प पार्ट से अगर किसी एनिमल को मारोगे बेटा तो दैट एनिमल विल डाई। ओके, सो इन दिस मैनर दे गेट फूड, बट एज द टाइम चेंज स्लोली फिर क्या हुआ, द अर्ली मैन was able to tame the animals। ओके, ये तो स्टार्टिंग की बात थी। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ बेटा, द टाइम चेंजेस। नाउ अर्ली मैन लर्न हाउ टू tame the animals। So what does it means? It means that अब देखो अर्ली मैन भी वाइल्ड एनिमल्स के की तरह लाइफ जीता था। वो भी उस समय वाइल्ड एनिमल्स के हाउस क्या है, जंगल्स है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट आर द हाउसेज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। सो इन द बिगिनिंग द अर्ली ह्यूमन बींग्स दे आर आल्सो लिविंग इन द फॉरेस्ट। सो नाउ अर्ली मैन लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स। सो वो भी एनिमल्स जैसे जंगल में रहते हैं, तो अर्ली ह्यूमन बींग्स भी बेटा फॉरेस्ट में रहता था। ठीक है, तो अब उसको भी धीरे धीरे देखो, जब वो भी वहीं रोज रहेगा तो उसको भी ये पता चल गया था कि जैसे आप क्लास में आते हो अपनी क्लास में, ठीक है, तो आप लगभग अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में आपको पता है ना, आपको पता है ये फ्रेंड्स आपका बहुत सीधा है, ये लड़ाई कर लेगा। आपको, हम लोग को एक दूसरे के संग रहते रहते एक दूसरे के नेचर के बारे में कुछ ना कुछ, एग्जैक्ट नहीं तो कुछ ना कुछ हमें नॉलेज हो जाती है। जैसे आप अपने घर में ही हो तो आपको पता होगा कि आपके भाई बहन का कैसा नेचर है, मम्मी पापा, ठीक है। सो आप अपने फैमिली में भी ऐसा करते हो। तो इन द सेम मैनर लाइक एनिमल्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स दे आर आल्सो लिविंग इन द जंगल्स। वो भी किस में रहते थे बेटा, वो भी कहाँ रहते थे, जंगल में ही रहते थे। तो अब उनको भी थोड़ा ये बातें समझ में आ गई थी कि कौन एनिमल डेंजरस है जिनसे उनकी लाइफ को भी खतरा है, और कौन ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे उनको कोई डर नहीं है। ये चीजें उनने कहां से सीखी, ऑब्जर्व किया उन्होंने देखा होगा कि कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं और कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं। और फ्लैश तो तभी खाने को मिलती है जब आप किसी को जान से मार दें। आप बात समझ रहे हो ना, जैसे अगर आप, जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स भी फ्लैश खाता था एनिमल्स के, मतलब एनिमल्स के फ्लैश को, मांस को खाता था। तो बेटा हम किसी का मांस या फ्लैश कैसे खा सकते हैं, जब हम उसको मार देंगे जान से तभी ना खा सकते हैं, सो अब जंगल में रहते रहते ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करके उसे ये समझ में आ गया था कि कौन एनिमल्स ऐसे हैं जिससे उसको खतरा नहीं है, और कौन एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे उन्हें बहुत खतरा है। ठीक है, सो अब इसका क्या फायदा उसने उठाया, उसने कुछ एनिमल्स को अपने वश में कर लिया, जैसे काऊ है, बैफेलो है, डॉग है, डंकी है, हॉर्सेस है। इन एनिमल्स को उसने अपने वश में कर लिया और डोमेस्टिक बना के अपने साथ रखने लगा। ठीक है,
क्योंकि अब उसे पता चल गया था कौन ऐसे एनिमल्स हैं जिससे उसे कोई खतरा नहीं है और कौन ऐसे एनिमल्स हैं जिससे उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ठीक है, तो उसने कुछ एनिमल्स को अपने संग रखना शुरू कर दिया। अब देखो स्लोली स्लोली टाइम और पास हुआ। अब इस एनिमल्स को, जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह बेटा कैसे जाते थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड ऑन फुट। वो वॉक करके अपने पैरों पे ही चल के एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भटकते रहते थे खाने के लिए। आ रही है बात समझ में? अब देखो एनिमल्स को संग रखने से उन्हें बहुत फायदा हुआ। उनका जो, और पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, ये तुम लोग को मैंने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ाया है, कैसे वो लोग सामान को कैरी करते थे अपने बैक पे, मतलब अपनी पीठ पे सामान को उठा के लेके जाते थे। चैप्टर 13 फायर चैप्टर में पढ़ाया होगा ये चैप्टर मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद जब एनिमल्स को टेम करना उन्हें आ गया, तो अब ये क्या, हैवी लोड को एनिमल्स की बैक पे कैरी करने लगे। फर्दर और क्या किया उन्होंने, अब ये एनिमल्स की बैक पे बैठ के राइड भी करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब थोड़े और चालाक हो गए। अब ये एनिमल्स पे पहले लोड कैरी करते थे, अब एनिमल्स की बैक पे बैठ के दे आर आल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो एंड अनदर बेनिफिट ऑफ दिस एनिमल्स का क्या है, जैसे काऊ है, बेफलोज, दे आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम देम। ठीक है, खाने के लिए मिल्क उनको मिल जाता था। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स। तो कुछ एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स ने डोमेस्टिक बना लिया और अपने संग रख लिया। अब स्लोली स्लोली नाउ सबसे बड़ी ह्यूमन बींग्स के लाइफ में बेटा चेंज पता कब आई, जब ह्यूमन बींग्स को कल्टीवेशन करना आ गया, क्रॉप्स लगाना आ गया, खेती करना आ गया। क्योंकि देखो पहले उसको कुछ नहीं आता था। ठीक है, अब उसको एनिमल्स को भी वश में करना आ गया, कुछ एनिमल्स उसने अपने संग रख लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसको एनिमल्स को भी टेम करना आ गया, उसने कुछ एनिमल्स को अपने साथ रख लिया। ठीक, लेकिन स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में सबसे बड़ी चेंज कब आई, जब उसे कल्टीवेशन करना आ गया। कल्टीवेशन मीन्स क्रॉप्स को लगाना। आपने सुना है फील्ड में, मतलब खेतों में हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं ना, और ये सारी कैसी आइटम्स होती हैं, ईटेबल्स होते हैं। ये सारी ईटेबल्स थिंग होती हैं जो कि हम लोग फील्ड्स में लगाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे क्रॉप्स बोलते हैं। अब देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स के लाइफ में सबसे बड़ी चेंज तब आई बेटा जब उसको क्रॉप्स लगाना आ गया। इससे उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई, अब उसने क्या किया, लैंड को क्लियर करने का काम किया। एंड हाउ दे क्लियर द लैंड, दे क्लियर द लैंड बाई कटिंग द ट्रीज। उसने लैंड को क्लियर कैसे किया बेटा, दे क्लियर द लैंड बाई कटिंग द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसने उस पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, क्रॉप्स लगाना स्टार्ट किया। और इसमें क्या है, उसने एनिमल्स की भी हेल्प ली। ठीक है, इस काम में उसने एनिमल्स की भी हेल्प ली, क्योंकि पहले बेटा जब कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए सॉइल में हल चलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो इसलिए उसने एनिमल्स के ताकत को भी, एनिमल्स की जो एनर्जी है, उनकी जो पावर है, उसको भी कल्टीवेशन में यूज किया। अब देखो बेटा ऐसा करने से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि पहले क्या था, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता था, बिकॉज जहां उसको खाने को मिलता था वो वहीं चला जाता था। ठीक है, उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं थी। दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए फूड। अब देखो क्रॉप्स कल्टीवेशन का मेथड जब उन्हें आ गया तो उनकी लाइफ में एक बहुत चेंज आई, उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ गई। अब वो वहीं पे रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें अनाज ग्रो करना आ गया, क्रॉप्स लगाना आ गया। तो अब क्रॉप लगाएंगे तो उससे बहुत, देखो बेटा जैसे राइस है, व्हीट है, बाजरा है, ये सब सारी चीजें ईटेबल सीड्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। पल्सेस हैं, ये सब क्या है बेटा, ईटेबल सीड्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं।
आ रही है बात समझ में? तो उसको ये सारी चीजें तो आ गई, ये सब करना आ गया उसको, तो उस ऐसा करने से उसके लाइफ में बहुत ज्यादा क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। अब अर्ली ह्यूमन बीइंग भी एक जगह पे रहने लगे, ठीक है, क्योंकि अब उनको खाने के लिए इन द सर्च ऑफ फूड दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं मूव करना पड़ता था, किसके लिए, खाने के लिए, क्योंकि उनके लाइफ में सबसे बड़ी चेंज तब आ गई व्हेन दे लर्न हाउ टू डू कल्टीवेशन, व्हेन दे लर्न हाउ टू डू कल्टीवेशन एंड कल्टीवेशन और चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स। अब उन्हें एनिमल से मिल्क भी मिलने लगा, एनिमल का भी यूज उसने कल्टीवेशन में किया, अब उसे बहुत सी ईटेबल सीड्स मिलने लगी, इज इट क्लियर? अब उसको ईटेबल सीड्स मिलने लगी तो उसके लाइफ में क्या हो गई, स्टेबिलिटी भी आ गई। अब उसे दूसरी जगह नहीं जाना था खाने के लिए, खाने के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाना पड़ रहा था। So now student, early man, what's happened? The early man learn how to tame the animals. Okay. Now the most important thing जो मैंने आपको बताई बेटा अभी, that the life of the early man totally changed due to when he learn how to do the cultivation. जब अर्ली ह्यूमन बींग्स को कल्टीवेशन करना आ गया तो अब उनके लाइफ में क्या हुई बेटा, एक स्टेबिलिटी आ गई। नाउ अब वो लोग एक जगह पे रुक के रहने लगे, क्योंकि फार्मिंग करने आ गई, क्रॉप्स लगाने आ गई। तो वी नो डैट फ्रॉम दीज क्रॉप्स से जो भी चीजें मिलती हैं वो क्या होती हैं, ईटेबल सीड्स होती हैं, जिनको हम खा सकते हैं। ईटेबल सीड्स को हम लोग कुक करके खाते हैं, कच्चा नहीं खा सकते, एनिमल्स खा लेते हैं, बट as a human beings we cook that seed and then we eat. So when the human beings learn how to do the cultivation, the life of the human being totally change. Now after that, next thing which is discussed, with the discovery of fire, early man was able to invent and make a number of things. Next thing क्या बोला, with the discovery of fire, जो कि मैंने फायर चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोग से। एक तो ये हो गया कि अर्ली ह्यूमन बींग्स को खेती करने आ गई, कल्टीवेशन करने आ गई, और विद द डिस्कवरी ऑफ ए फायर दिस आल्सो चेंज अ लाइफ ऑफ ए अर्ली ह्यूमन बीइंग। बाई चांस, बाई एक्सीडेंटली हो सकता है कि पेड़ों की जो ब्रांचेस है आपस में रब की, सो बाई चांस सूखी झाड़ियां हैं, जब हवा बहुत तेज चलती है और जब ये आपस में रब करती हैं तो बाई चांस कोई स्पार्क निकली होगी और ड्यू टू दैट एक्सीडेंटली फायर फॉरेस्ट में लग गई होगी। तो अर्ली मैन ने ऑब्जर्व किया होगा कि फायर से सब लोग डर के भाग रहे होंगे। इट मीन्स व्हाट द, क्योंकि मैक्सिमम चीजें अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने ऑब्जर्व कर करके ही सीखी थी बेटा। सारी चीजें जो अर्ली मैन ने सीखी थी कैसे, वो ऑब्जर्व करके ही सीखी थी। बाई चांस जंगल में आग लगी होगी तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने देखा होगा कि एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फायर, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया ना, उसने कुछ एनिमल्स को, अब पहला अर्ली ह्यूमन बीइंग वो भी एनिमल्स की तरह फॉरेस्ट में ही रह रहा था, तो अब उसे ये डिफरेंस समझ में आ गया था कि कौन एनिमल्स ऐसे हैं जिससे उसे कोई खतरा नहीं है, तो उसने उन एनिमल्स को अपने संग भी रख लिया, और कौन ऐसे एनिमल्स हैं जिससे उसकी लाइफ को भी खतरा है, सो वो उनसे दूर ही रहता था, बच के रहता था, क्योंकि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स को पता था ये एनिमल्स उसे भी किल कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस हो सकता है कभी जंगल में फायर लगी होगी और उसने देखा होगा कि सारे एनिमल्स दे आर अफ्रेड ऑफ द फायर एंड दे आर रनिंग, सारे भाग रहे हैं,
तो हो सकता है यहाँ से अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये समझ में आ गया होगा कि फायर से सारे एनिमल्स अफ्रेड होते हैं। इज इट क्लियर? सो आपने देखा होगा अर्ली ह्यूमन बींग्स गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, और वेयर दे आर लिविंग, जहां भी होते थे वहां वो लोग क्या करते थे, आग जला देते थे, क्योंकि उनको पता था जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, फायर से अफ्रेड होते हैं, डरते हैं, फायर के पास नहीं आते। ठीक है? सो और मे बी ऐसा भी हुआ होगा कि अब देखो ह्यूमन बींग्स ने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करके सीखी थी। पहले क्या था, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को किल करता था और रॉ फ्लैश खाता था, कच्चा मांस खा जाता था। लेकिन जैसा मैंने बताया ना, हो सकता है कभी जंगल में, फॉरेस्ट में आग लगी हो, बहुत से एनिमल उसमें जल गए हों, और बाई चांस उस एनिमल का फ्लैश मीट उसने खाया होगा अर्ली मैन ने, तो उसे लगा होगा कि अरे ये आग तो बहुत ही अच्छी चीज है, आग में पका के खाने से तो ये फ्लैश और भी टेस्टी हो गया, क्योंकि उसने सारी चीजें ऑब्जर्व, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखी थी। बाई चांस कोई जानवर रोस्टेड हो गया होगा, आग में जल गया होगा, ऐसे एनिमल को उसने खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा होगा, उसने बोला होगा अरे वाह ये तो आग बहुत अच्छी चीज है, अगर इसमें किसी चीज को पका के खाते हैं तो वो और भी क्या ज्यादा हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। ठीक है? तो अर्ली मैन की लाइफ, तो जब अर्ली मैन को फायर का यूज करना आ गया तो भी उसके लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई। देखो फायर का यूज करना अर्ली मैन को आ गया तो अब उसने खाने को पका के खाना स्टार्ट कर दिया। अब उसको फॉरेस्ट वाले एनिमल से डर कम हो गया, बिकॉज दे न्यू, अब उसे ये समझ में आ गया जो खतरनाक जानवर हैं वो उसके पास कभी भी नहीं आएंगे, बिकॉज दे ऑल आर अफ्रेड ऑफ फायर, वो सभी फायर से डरते हैं, इसलिए वो उसके पास कभी नहीं आएंगे। अब उनको लगा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ओके, वो कहीं भी जंगल में बिना डर के जा सकते हैं, बस उनके साथ क्या होनी चाहिए, फायर होनी चाहिए, ऐसी लकड़ी जिसमें आग लगी हो। ठीक है? तो कभी भी कोई एनिमल उनके पास नहीं आएगा। सो विद द डिस्कवरी ऑफ फायर ऑल्सो चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग। अब हो सकता है जब फायर का यूज उसे करना आ गया तो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने भी खाने को आज जैसे आपकी मम्मी लोग किचन में खाना हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग बेटा कच्चा नहीं खाते हैं, जितने भी ईडेबल सीड्स हैं उनको पका के कुक करके खाते हैं। तो अब ये सब चीज ने भी अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ को मच बेटर बना दिया। और फायर की और भी बहुत ही यूजेस हैं। ठीक है? रात के समय क्या होती है, लाइट नहीं होती है, अगर आप रात में लाइट नहीं होती है, अगर आप कुछ लकड़ियों को जला दो तो उससे जो लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, उससे भी चीजें विजिबल हो जाती हैं। ठीक है? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को भी अगर लाइट, आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर लाइट चली जाती है तो बिल्कुल डार्क होता है, तो हम लोग डार्क लाइट में क्लियरली हम नहीं देख पाते हैं। जब तक हमारी आंखों में लाइट नहीं पड़ती तब तक चीजें हमें, डार्क लाइट में चीजें हमें ठीक से विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है? ठीक से चीजें विजिबल हमें नहीं होती हैं। इज इट क्लियर? सो अब क्या है, अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ और भी बेटर हो गई। किससे बेटर हो गई अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ और भी बेटर किससे हो गई, ड्यू टू द फायर। सो एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या मैंने आपसे डिस्कस किया अभी तक के टॉपिक में। अभी तक के टॉपिक में स्टूडेंट मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर बहुत पास समय की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ भी कैसी थी, एनिमल्स की तरह थी। द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग इज आल्सो लाइक ए एनिमल्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए फूड। और वो पहले क्या करता था, the early human being totally depends upon the plants for their food and even they killed other animals, और उनके क्या खा जाता था, उनकी फ्लैश को भी खाया करता था। ठीक है? लेकिन और ऐसे उसकी लाइफ चल रही थी। ठीक है? फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ में सबसे ज्यादा चेंज कब आई, जब उसने, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अर्ली मैन
ने क्या किया, कुछ एनिमल्स को टेम कर लिया, अपने वश में कर लिया और उन एनिमल्स को अपने साथ रखने लगा डोमेस्टिक बना के, ठीक है। तो और उसके बाद और बेटर चेंज अर्ली ह्यूमन बीइंग के लाइफ में तब आई जब उसने कल्टीवेशन करना सीख लिया, जब उसे क्रॉप्स लगानी आ गई। तो ऐसा करने से क्या है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। अब उसे खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बेटा नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि अब उसे अनाज को, क्रॉप्स को, फसलों को उगाना आ गया था। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।